Hello students, welcome to the NEET 2018 paper solution practice series. Let us start with the MCQs. Now if you go through the question number 1, that is an electromagnetic wave is propagating in the medium with the velocity of v and the instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along with the positive y-axis, then the direction of oscillating magnetic field. So basically when we have to solve the point of v to identify the direction, we have to go for E cross B, right? So in that case, obviously over here the particular velocity is given within the I, that is x-axis component. Over here the oscillating electric field is along with the positive y-axis, that means j cap. So obviously when you put down the basic vector relation over here, I is equals to j cross k, so according to vector component we will have the answer of k component, that is in plus value. So the final answer would be plus z direction. Now just go through the second question. The refractive index of a material of a prism is root 2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inwards by silver coating. Silver coating किया हुआ है. A beam of monochromatic light, मान single source, entering into the prism from the other face will retrace its path. उसका path retrace होने वाला है, वापिस होने वाला है. So after reflection from the silver surface, if its angle of incidence in the particular prism, so obviously when we have to identify, first and foremost, if you identify the basic diagram, we can draw this particular prism over here. Now in that case, so when the ray is passing through the particular prism, it is going to incident over here. Now after incidenting over here, when it passing through the prism, it is going to retrace in the same path because this particular surface is coated with the silver. Okay, this surface is coated with the silver, so the ray is again retracing over this particular path. So obviously in that case we are saying this r would be r2 would be 0. In this particular case when we identify the angle over here, that r1 becomes 30. Why? Because the prism angle is 30. So if you just put down this basic equation, r1 plus r2 is equals to a, the r2 obviously due to retracing, that would be 0. So r1 would be 30 degree. So 30 over here we can say that, okay, based on the prism angle, again that will remain 30. Now according to the basic Snell's law, we can put down our formula, mu1 sine I is equals to mu2 sine r. In case of mu1, that is air, so that would be 1 only. Sine I is available, that we have to identify. Over here mu2, that is given in question, that is root 2. Sine r, in case of r we can put down the 30. The value of sine 30 would be 1 by 2. So root 1 by root 2 will be the remaining quantity. And finally 1 by root 2 is the 45 degree. So we can say that the final answer of this would be second number, that is 45 degree. Now just read the question third. The magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. Please keep in mind this one is millijoule. When the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor is of inductance what? So in that case the basic formula which we have to identify, that is U is equals to 1 by 2 Li square. In case of potential energy which is given into the question, that is 25 millijoule, milli will be converted into the form of 10 raised to minus 3 over here. In case of 1 by 2 it is same. L, that is unknown parameter. In I, that is basically given over here, that is 60 milliampere. So in case of milliampere we have to convert it into the ampere, so 10 to the power minus 3 would be there. So
after this we just have to make subject to the value of L and just solve this one. You will get the answer of 13.89 Henry. So the particular answer, that is 4 number, is the true answer for us. Now if you just read the question, an object is placed at the distance of 40 centimeter from a concave mirror with the focal length of 15 centimeter, and if the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be. So यहाँ पर बेसिकली दो टेक्निक्स है इसको सॉल्व करने के लिए. अगर आप सिंपली डायग्राम कॉन्सेप्ट में और फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन हैव अ थॉट, सिंपल थॉट कि यहाँ पर फोकल लेंथ यहाँ पर दिया गया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर. ओके, सो अगर हम टोटल सी निकालेंगे तो वो बेसिकली हो जाएगा 30. अगर मैं सिंपल वो बात करूँगा, दैट मीन्स अगर सिंपल यहाँ पर फोकल लेंथ हमारा यहाँ 15 दिया हुआ है, मैं सी अगर बात करूँगा तो उस केस में वो हो जाएगा 30. सो यहाँ पर ऑप्शंस 30 सेंटीमीटर वाले दो है, बट बेसिकली जब यहाँ डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 40 और 20, तो उस केस में सी पर तो है नहीं, मीन्स ना ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, मीन्स ये एक बार 40 सेंटीमीटर पर है और एक बार 20 सेंटीमीटर पर है. तो उस केस में हमें ये दो जो ऑप्शंस है 1 and 3 वो तो डायरेक्टली चले जाएंगे. 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर तो वो तो हो नहीं सकते. तो सिंपली हमको बेस कैलकुलेशन में देखना है कि 36 अवे फ्रॉम द मिरर और 36 टूवर्ड्स फ्रॉम द मिरर. तो शॉर्ट टेक्निक्स में आप समझ लो कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर है मीन्स आप यहाँ पर पहले 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे, फिर डिस्प्लेस हुए, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, मीन्स मिरर के नज़दीक जाओगे तो ऑब्वियसली उसके केस में आपको जो इमेज मिलने वाला है वो दूर मिलने वाला है, जैसे कि हमने थियरी में पढ़ा हुआ है. सो इफ़ यू डोंट रिकॉल, जस्ट रिफर द मॉड्यूल, उसमें हमने सारे डायग्राम्स में दिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिलेशन विद द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो उस केस में भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 36 अवे फ्रॉम द मिरर वुड बी द फाइनल आंसर. बट आपको कैलकुलेट भी करना है तो कैसे कर सकते हो कि सिंपल ये हमने एक एक्सेल लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनिशियली 40 सेंटीमीटर था, इनिशियली वो बेसिकली यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है वो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर था, फोकल लेंथ 15 थी. तो हमारा जो 1/u 1/v इज इक्वल्स टू 1/f वाला फॉर्मूला है उसमें से हम इमेज डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना देते हैं. उसका जो बेस इक्वेशंस है ऑब्वियसली ये दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, राइट. कार्टेशियन सेट के अकॉर्डिंगली हमने जो ट्रिक दे रखी है उसको भी आप रिकॉल कर देना. सो उसमें से हमारा फर्स्ट आंसर आया -24 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इफ यू गो थ्रू द सेकेंड पॉइंट कि जो 40 सेंटीमीटर था उसकी जगह अभी आपको सिर्फ क्या लिख देना है, 20 सेंटीमीटर. सो सेम फॉर्मूला, जस्ट 40 की जगह यहाँ 20 लिखो और उसका सॉल्यूशन दोगे तो आपको मिलेगा -60. नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस टू आंसर, अगर आप -60 और -24 को निकालते हो, दैट मीन्स यू विल हैव द स्पेसिफिक आंसर ओवर हियर. मीन्स 36 सेंटीमीटर आ रहा और ये माइनस दिखता है, दैट मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द मिरर. सो दो मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर विद द कंसेप्ट ऑफ थियोरी पॉइंट और विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला. Now just read the next question over here. You can see this particular combination दिया हुआ है आपको गेट का. यहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स ऑब्जर्व करने हैं, मल्टीपल गेट है. सो इफ यू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर गेट फर्स्ट ए है, तो सपोज ये सीधा इनपुट जा रहा है, ओके तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया. ये बी है, बी बेसिकली नॉट गेट में पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश हो गया, तो मैंने क्या लिखा, बी बार, राइट. अभी सिंपल ये ए सीधा बाईपास होकर यहाँ पर आता है, ऑब्वियसली ये ए एंड नॉट गेट में से पास होता है, तो नॉट गेट में से अगर वो पास होगा तो वो हो जाएगा ए बार. यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए बार. ऑब्वियसली ये जो बी आप देख रहे हो, ये जो बी आप देख रहे हो वो सीधा यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो फाइनली यहाँ सीधा यहाँ हमको बी लिखना है. नाउ अभी ये जो आपको यहाँ पर अल्टीमेटली जो गेट दिख रहा है वो है बेसिकली एंड गेट.
हमारा, तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा उसका आउटपुट आएगा, मीन्स दो इनपुट बने, क्या, ए एंड बी बार डैश, वो क्या है, इनपुट है। और बेसिकली जब हम एंड गेट होता है तो ऑपरेटर क्या रखते हैं, ऐसा डॉट साइन होता है ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर जैसे हम लिखे तो ये क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। और यहाँ गेट कौन सा है, एंड गेट, तो मैंने फिर से यहाँ पर ऑपरेटर रख दिया डॉट करके, और ये हो गया यहाँ पर बी। नाउ दिस विल एंटर इनटू दी और गेट, राइट। ये जो गेट है वो कौन सा गेट है, और गेट है, याद कर लेना, ये जो गेट है वो और गेट है, ये जो गेट आपको दिख रहा है वो है नॉट गेट है। और जो पहला वाला जो गेट था, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर एंड गेट हमको लिखना है, दिस वन इज एंड गेट, राइट। और पहला वाला जो है वो है हमारा नॉट गेट, राइट। तो अभी सारे गेट्स और उसके आउटपुट मिल गए, अभी एंड पॉइंट पर हम पहुंचे हैं। अभी ये जो है वो एंड गेट और गेट में आ रहा है, और ये आउटपुट माने ये सिंपल जो दोनों आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, वो यहाँ पर आउटपुट में आएंगे, तो ये दोनों मिलके बीच में हमको क्या लिखना है, प्लस ऑपरेटर हो जाएगा। और गेट है तो ऑपरेटर क्या होगा, प्लस। तो अगर आप सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को जस्ट वेरीफाई करोगे तो आपको ये पहला वाला इनपुट यहाँ पर दिख रहा है, राइट। फिर और गेट है तो ये ऑपरेटर आपको ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पर प्लस जैसा साइन है, राइट। और ये जो ए बार डॉट बी है वो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। दैट मीन्स ऑन द बेस डायग्राम विल हैव दिस फाइनल आंसर। वंस अगेन यू कैन सी दिस कि फर्स्ट ए था वो सीधा एंड गेट में गया, बी नॉट गेट में से बाहर निकल के एंड गेट में जाता है, सो बी बार हो गया। यहाँ पर ए बाईपास होकर सिंपली एंड गेट में गया तो ए बार, बी अगेन एंड गेट में जाएगा तो सिंपली वो बी है। यहाँ एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमको लिखना है, ये दोनों मिलके और गेट में एंटर हो रहे तो उसको हमें और गेट का आउटपुट लिखना है, एंड द फाइनल आंसर वुड बी द सेकेंड वन। Stay connected with us for next MCQ solutions. Thank you.